afternoon, ladies and gentlemen. On behalf of University of Delhi, I welcome you all to the book launch of Golden Day, 7th October 2001 by Shri Girish Sharma ji. Respected Shri Shailendra Kumar Jain, founder and group editor, Amar Bharti, daily newspaper. Professor Yogesh Singh, Honorable Vice Chancellor, University of Delhi. Shri Ram Kripal Yadav ji, former Union Minister, Government of India. Shri Atma Ram Parmar ji, former Cabinet Minister, Government of Gujarat. Shri Girish Sharma ji, author, Gandhinagar. Professor Balram Pani, Dean of Colleges, University of Delhi. Professor Shri Prakash Singh, Director, South Delhi Campus, University of Delhi. Professor Manoj Sinha, Principal Aryabhat College, University of Delhi. Shri Prakash ji Barot, Journalist. भारतीय परंपरा के अनुसार हम कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती वंदना और दीप प्रज्वलन से करते हैं. I request the dignitaries on the dais to kindly join us for lighting of the lamp. सन 2022 में दिल्ली विश्वविद्यालय ने अपना शताब्दी वर्ष मनाया. शताब्दी वर्ष में हमने अपने विश्वविद्यालय का कुल गीत आत्मर्पित किया है. हमारा कुल गीत विश्वविद्यालय के ध्येय वाक्य निष्ठा, धृति, सत्यम का उद्बोधन है. I request everyone to kindly rise for the university कुल गीत. जयति जय
जय जयति जय जय ज्ञान का आलोक अनुपम। श्रेष्ठ सुंदर दिव्य दिल्ली विश्वविद्यालय विहंगम। जयति जय जय जयति जय जय ज्ञान का आलोक अनुपम। सकल वसुधा निज कुटुंब की भावना संस्कृति सनातन। आधुनिक शिक्षा पुरातन ज्ञान धाराओं का संगम। देश की स्वाधीनता हित भूमिका शतकोटि वंदन। निष्ठा धृति सत्यम के मंगल दिव्य भावों का समागम। जयति जय जय जयति जय जय ज्ञान का आलोक अनुपम। भव्य महाविद्यालयों के परिसरों से चिर सुशोभित। श्रेष्ठ गुरुजन कर रहे नित्य छात्र और छात्राएं दीक्षित। सदचरित्राचार पावन साधना संकल्प संयम। नवल वैश्विक चेतना नव क्रांति संस्कारों का उद्गम। जयति जय जय जयति जय जय ज्ञान का आलोक अनुपम। श्रेष्ठ सुंदर दिव्य दिल्ली विश्वविद्यालय विहंगम। जयति जय जय जयति जय जय ज्ञान का आलोक अनुपम। ज्ञान का आलोक अनुपम। ज्ञान का आलोक अनुपम। ज्ञान का आलोक अनुपम। थैंक यू। ए बादल जरा थम के बरसना, ए बादल जरा थम के बरसना, वो आए तो जम के बरसना। ऐसा ना बरसना कि वो आ ना सके, फिर ऐसा बरसना कि वो जा ना सके। जो बोला जा रहा है ये हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए 2001 में गुजरात के लोगों ने बोला था, पर ये हो ना सका। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उनके उल्लेखनीय एवं उत्कृष्ट कार्यों के फलस्वरूप उन्हें संगठन द्वारा भारत के प्रधानमंत्री का दायित्व सौंपा गया। Today we have gathered for the book launch of the book titled Golden Day, 7th October 2001. On this day, a star was born, and the light of the star shone brightly not only in Gujarat and India. Its light spread to the entire world. Under the visionary leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, Bharat rightfully earned the title of Vishwa Guru. I request Professor Balram Pani, Dean of Colleges, University of Delhi, to kindly felicitate Shri Shailendra Jain, Sir, Founder and Group Editor, Amar Bharti. Thank you, sir. We have with us today Srimati Kusum Sharma ji. उन्होंने गुजराती भाषा की पुस्तक स्वर्ण दिन का हिंदी रूपांतरण किया है. I request Srimati Kusum Sharma ji to kindly felicitate Professor Yogesh Singh, Honorable Vice Chancellor, University of Delhi.
थैंक यू मैम। मैं ये भी बताना चाहूँगी कि इस हिंदी रूपांतरण का द्वितीय संस्करण आज प्रकाशित होने जा रहा है। आई रिक्वेस्ट श्री उमाकांत मिश्र, सोशल वर्कर, नगर व्यवस्था प्रमुख बनारस, a retired railway officer, to kindly felicitate Shri Ram Kripal Yadav ji, former Union Minister, Government of India. थैंक यू सर। आई रिक्वेस्ट श्री दिनेश भाई, जो सामाजिक समरसता मंच कच्छ विभाग के अध्यक्ष हैं, टू काइंडली फेलिसिटेट श्री आत्मा राम परमार जी, फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात। Thank you, sir. I now request Shri Deepansh Sharma ji, advocate and social worker, to kindly felicitate Shri Girish Sharma ji, author of the book The Golden Day. Thank you very much. I request Shri Satish Bhai Patel, retired IS officer from Gandhinagar, Gujarat, to kindly felicitate Dean of Colleges, Professor Balram Pani. Thank you, sir. To felicitate Professor Shri Prakash Singh, Director, South Delhi Campus, I request Shri Vivek Kumar Gupta, Sangh Karyakarta, Delhi. I request, thank you. I request Shri Ram Charan Gujarati, ex-president, Mayur Vihar Zilla, Bharatiya Janata Party, to kindly felicitate Shri Prakash Barot ji. Thank you. Ladies and gentlemen, today we are here for the book launch of the book Golden Day, 7th October 2001. The book has been written by Shri Girish M. Sharma ji. Girish ji has been affiliated with the Rashtriya Swayam Sevak Sangh since 1971.
A Swayam Sevak is someone who devotes his life to selflessly serve every citizen of the country from Kashmir to Kanyakumari. जिस तरह से हनुमान जी भगवान राम जी की सेवा करते हैं, वैसे ही स्वयं सेवक भारत के प्रत्येक नागरिक की सेवा के लिए अग्रसर रहते हैं. Over the span of 50 years, Girish ji has been entrusted with various responsibilities within the RSS and the BJP. After completing his education of a master's degree and LLB, he joined the RSS from Porbandar in 1971. He has been chief of Chiloda Mandal of Gandhinagar Tehsil, city in charge Gandhinagar, district Pracharak Rajkot. He has worked in Vidya Bharati and the Punarutthan Trust. In 2013, he was special invitee, BJP Gandhinagar Metropolitan Executive. He has been co-coordinator of Gandhinagar Assembly seat for Bharatiya Janata Party in 2017. I request Sir to kindly enlighten us about this book. ओम. हमारे मनीषियों ने जो एक ऋग्वेद में सूत्र दिया है, उसका मैं सादर प्रस्तुत करता हूँ. ओम संगच्छतुम संवदध्वम संवो मनासी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते. हम साथ चले, हम साथ मनन करें, हम साथ बात करें, साथ आगे बढ़ें. इस गरिमामयी सभागृह में आज स्वर्ण दिन पुस्तक का विमोचन कार्यक्रम होने जा रहा है. हमारा मंच विद्वत जनों से, आदरणीय जनों से गौरवान्वित है. हमारे शैलेंद्र जैन जी हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष, उनकी विशेषता है वो प्रखर राष्ट्रवादी है. बीच में जो बहुत बड़ा कांड हुआ था आतंकवादी की ओर से, तो एकमात्र ऐसा जनसमूह था, प्रकाशन समूह था, जिन्होंने मंदी का नाम देकर उसको एक्सपोज किया था. किसी से ना डरते हुए उन्होंने उनका नाम घोषित किया था. आज भी अपने गांव के लिए, देश के लिए वो कार्यरत है. हमारा सौभाग्य है आज हमें अध्यक्ष प्राप्त हुए हैं. अब मैं जो कहने जा रहा हूं, आप सबको हंसने की छूट है, ताली बजाने की भी छूट है. हमारे सबके मार्गदर्शक प्रणाम दीप आदरणीय श्री योगेश सिंह जी गुजराती, हम गुजरात वालों का और पंजाब वालों को ऐसा है कि एक बार दिल में बिठा देते हैं, कभी निकालते नहीं. आप बड़ौदा में रहें, पूरे गुजरात के शिक्षण जगत को आपने मार्गदर्शन किया. आज भी लोग आपको स्मरण करते हैं. और इस कार्यक्रम के माध्यम से वो ऊर्जावान व्यक्ति का मुझे फिर से संपर्क में आने का, उनके साथ 2 क्षण बिताने का अवसर मिला. मैं भाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को. इस कार्यक्रम में माननीय श्री रामकृपाल यादव जी बिहार से आए हैं. कर्मयोगी हैं और जिसकी आंख में आंसू है उसको लूटने का उनका प्रण है. उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, फिर भी वो आए हैं. मैं कामना करता हूं वो बहुत राष्ट्र सेवा करें और राष्ट्र के लोगों के लिए समर्पित रहें. हमारे गुजरात के परम मित्र माननीय आत्माराम भाई परमार, बहुत लोग उनसे परिचित है.
विद्यार्थी काल से जुझारू नेता रहे। आपको स्मरण होगा विद्वज्जनों को कि नवनिर्माण आंदोलन हुआ था गुजरात में, उसके वो भी पुरोधा थे, व्यवसाय से वकीलात है, MA LLB किया है मेरी तरह उन्होंने भी। 1993 से 2022 तक अखंड उन्होंने विधानसभा में प्रतिनिधित्व किया है। राज्य मंत्री रहे, कैबिनेट मंत्री रहे, गुजरात विधानसभा के स्पीकर भी रहे। आज भी वो डटे हुए हैं राष्ट्र कार्य के लिए। मैं कब से सोच रहा था इतना यहाँ देदीप्यमान क्या है, इतना प्रकाश क्यों है, तब मुझे ध्यान में आया कि यहाँ 2 प्रकाश है। और यहाँ 2 राम भी है, आत्माराम भी है और राम कुमार भी है। तो ये हम सबके लिए बहुत गौरव का दिन है। हमारे आदरणीय बलराम पानी जी, हमारे माननीय संचालक जी है, मैं उनका आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ। हमारे मनोज सिन्हा जी, जिनका मुझे अंतिम 4-5 दिन से सतत मार्गदर्शन मिलता रहा, बिल्कुल छोटे छोटे बात के लिए उन्होंने चिंता की है। आप जो कार्यक्रम का स्वरूप देख रहे हैं उसमें उनका, हमारी बहन विनोद कपूर जी का बहुत योगदान है। मुझे नम्रता से कहना है, और 2 लोग हैं यहां पर नहीं है, फिर भी सूक्ष्म स्वरूप से हैं। एक हैं हमारी आदरणीय बहन, इस यूनिवर्सिटी के अध्यक्षा वसुबेन त्रिवेदी। उनका नवरात्र का कार्यक्रम है, उपवास वगैरह होता है, तो उनकी बहुत इच्छा थी, लेकिन नवरात्र होने के लिए फिर नहीं आ पाई है। और दूसरे एक व्यक्ति ऐसे हैं, उनको कार्यक्रम का पता है, वो है हमारे माननीय नरेंद्र भाई मोदी। मैं जो बोल रहा हूं तो मुझे थोड़ा संकोच ये हो रहा है कि यहाँ सब विद्वान लोग बैठे हैं, उनकी तुलना में मैं ज्ञान में बहुत छोटा हूं, छोटा शिशु हूं। तो मेरी शिशु की बात तुतली तुतली भाषा में बोलता हूं, वो स्वीकार करे और मुझे आशीर्वाद दे। आज 7 अक्टूबर है। 7 अक्टूबर 2001 के पावन दिन पर हम सब के आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने प्रथम बार गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया। ये ऐतिहासिक घटना थी, इसलिए कि उन्होंने कभी कोई सरपंच का चुनाव नहीं लड़ा था, न तहसील पंचायत का, न जिला परिषद का, न विधायक का। उनके मजबूत कंधों पर उस समय के नेतृत्व ने सोचा कि इसको ही भेजते हैं। और अटल जी ने कहा था हंसते हंसते कि नरेंद्र, तुम खा पी तगड़े हो गए हो, जाओ गुजरात सब ठीक करो, परिश्रम करो। और उस दिन से गुजरात चल पड़ा है विकास की राह पर। आदरणीय आत्माराम भाई जी उनके साक्षी हैं। लोग कभी कभी सोच भी नहीं सकते थे, बिल्कुल नया आदमी जिसने कभी कोई शासक की जिम्मेवारी नहीं ली है, कैसे शासन चलता है, कैसे काम चलता है, कुछ पता नहीं है। उन्होंने दिन रात अहोरात्र परिश्रम करके गुजरात को विशेष स्थान दिया। मुझे पता है सुबह 8 बजे से रात तक सबको लिए मिलने के लिए वो उपलब्ध थे। सूचनाएं थी उनके सहयोगी को कि 8 बजे से शुरू करना समय देने का, अंतिम जब तक बैठा है कोई मुलाकाती 11 बजे 11:30 बजे उनका मुलाकात चलता था। गुजरात के गांव-गांव में उन्होंने काम किया है, यात्रा की है। 35 साल तक घर घर जाकर महादोकरी रूप से भिक्षा मांगकर खाना खाया है। प्रचारक थे, कोई जिम्मेवारी नहीं थी, राष्ट्र की चिंता थी।
मेरा सौभाग्य है, मैं नम्रता से कहता हूं, मैंने 5 साल उनके साथ काम किया। 5 साल में कभी मुझे उसे टोका नहीं, रोका नहीं, उत्साह देते रहे, प्रेरणा देते रहे। कल्पनातीत कार्यक्रम हुए। मैं जिस गांव में जाता था, पहले वहां राष्ट्र विरोधी लोग सीना तान कर चलते थे। उनकी प्रेरणा से आज वहां राष्ट्रीयता मुखर रही है, ध्वज फहरा रहा है हमारा। एक बार उनका फोन आया सहयोगी का कि नरेंद्र भाई ने कहा है कि आपके साथ जो प्रवास किए हैं, आनंद किए हैं, थोड़े प्रसंग लिख कर भेजो। मेरी प्रथम पुस्तक पारिजातना पुष्पो मैंने लिखी थी, वो भी उनकी प्रेरणा से लिखी थी। उस समय कच्छ में भूकंप था, मैं राहत कार्य में जाता था, थोड़ा एक्सीडेंट हो गया था, तो उनका फोन आया कि क्या करोगे? मतलब पढ़ूंगा और क्या। तो क्या आप 71 से काम कर रहे हैं, कुछ लिखिए, प्रेरणा दिए प्रसंग लिखिए। मैंने कहा लिखूंगा एक शर्त पर, आपको विमोचन के लिए आना पड़ेगा। बोले आऊंगा, अगर आप लिख रहे हैं, आप कुछ पुस्तक प्रकाशन कर रहे हैं, आपका प्रथम पुस्तक है, मैं आऊंगा। तो 29 मई 2001 को आए और पुस्तक का प्रकाशन हुआ और बाद में 3 महीने के बाद वो गुजरात के सीएम बने। तो मैं भावुक इसलिए हो रहा हूं, 14 में वो भारत के एक अतुलनीय ऐसे प्रधानमंत्री बने। भारत मानो चारों विश्व में दमक रहा है, चमक रहा है, ऐसा वायुमंडल हो गया। 19 में वो दोबारा चुनकर आए और ज्यादा शक्तिशाली होकर बाहर आए। उसके बाद उनका ये फोन आया था, कुछ लिखो, आपको तो लिखने का अभ्यास है। तो मैंने कुछ प्रश्न लिखकर भेजे। बोले और लिखो, अच्छा लिखा है। मैंने कहा नरेंद्र भाई तो बुक बनने वाली है। बोले बनाओ। तो मैंने बहुत सोचा क्या नाम रखे, क्या नाम रखे। तो मुझे याद आया कि वो जब पहली बार बने थे गुजरात के मुख्यमंत्री, वो गुजरात का स्वर्ण दिन था और मैंने बुक का नाम रखा सुवर्ण दिन। तो इस प्रकार से ये घटना घटी है, चली है। आज इसी पुस्तक की द्वितीय हिंदी संस्करण हो रहा है। हमारे वाइस चांसलर है गुजरात के, उन्होंने इसका अनुवाद किया है अंग्रेजी में। तो आप सबसे हृदय से प्रार्थना है कि गुजरात में कम से कम एक बार कच्छ देखने के लिए आइए, नवरात्रि देखने के लिए आइए। पुनः सभी का हृदय से अभिनंदन। पूरी टीम को मैं नमन करता हूं, वंदन करता हूं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। Thank you, sir. I request Shri Vikas Mishra ji, ABP News and social worker, to kindly felicitate Professor Manoj Sinha, Principal, Aryabhatta College. Ladies and gentlemen, it's a historic day for University of Delhi too, because today marks 3 years of completion
of Honorable Vice Chancellor of Delhi University, Professor Yogesh Singh. On 7th of October, under his inspiring leadership and untiring efforts, has helped raise the status of University of Delhi sky high. With the result, its faculty and its students have earned laurels and accolades all over the world. Thank you very much, sir. It is an honor for University of Delhi, as we have in our midst a stalwart from the field of politics, Shri Atmaram Parmar ji, former Gujarat Minister, Cabinet Minister, Government of Gujarat. जैसे कि गिरीश जी ने हमें बताया है, सर एक छोटा सा आपका परिचय, कि सर ने गुजरात के जो नव निर्माण आंदोलन जो हुआ था उसमें जुझारू रूप से कार्य किया। 1993 से 2022 तक वे बीजेपी के विधायक, राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री और गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। आई रिक्वेस्ट सर टू काइंडली शेयर हिज थॉट्स विद अस। भारत माता की। सारस्वतों के बीच पॉलिटिशियन रहते हैं तो थोड़ा हमें अक्रामन रहती है। दोस्तों, आज दिल्ली विश्वविद्यालय एवं आर्यभट्ट महाविद्यालय द्वारा आयोजित हमारे गिरीश शर्मा जी लिखित गोल्डन डेज गुजराती एडिशन का हिंदी और इंग्लिश ट्रांसलेशन का इनोग्रेशन कार्यक्रम में उपस्थित हमारे केंद्र सरकार के मंत्री रह चुके रामकृपाल यादव जी, हमारे यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर योगेश सिंह जी, इस पुस्तक के राइटर गिरीश कुमार शर्मा जी और ये पुस्तक को जिसने हमारे सामने पेश किया है वो शैलेंद्र कुमार जैन, बलराम जी, प्रकाश जी, मनोज सिन्हा जी और प्रकाश बारोट जी। और इस कार्यक्रम में उपस्थित भाई और बहनों, शायद नरेंद्र भाई मोदी की पुस्तिका जो ट्रांसलेट होकर हम सबके सामने आ रही है, मोदी जी को मैंने संगठन बनाते भी देखा है और सरकार चलाते ही देखा है। पहले वो संगठन में आए, बाद में सीएम बने। वो जब सीएम बनने दिल्ली से जब आए, भेजे गए उसको, उसका भी मैं साक्षी हूं। और जब गुजरात ने दिल्ली भेजा वापस, वो पीएम बने, उसका भी मैं साक्षी हूं। यानी संगठन टू सरकार एंड सीएम टू पीएम, मैं उसका साक्षी रहा हूं। मोदी जी के बारे में बहुत कुछ हम लिख सकते हैं, इतनी क्वालिटी है। मैं इतना कह सकता हूं, मोदी जी इज अ मैन ऑफ विजन। उसके पास विजन है हर एक सब्जेक्ट के लिए। विजन के साथ डिसीजन भी है। विजन में आया तो डिसीजन ले लिया है, करना है और पूरा कमिटमेंट से करना है। इज अ मैन ऑफ कमिटमेंट, इज अ मैन ऑफ
इम्प्लीकेशन, कमिटमेंट लिया और छोड़ दिया ऐसा नहीं, कैसे उसको इम्प्लीकेट करना है वो भी डिसाइड करते हैं। इज अ मैन ऑफ कंप्लीशन। काम कैसे खत्म हुआ, एक दफा लिया बीच में छोड़ दिया, ऐसा मोदी जी का नहीं आएगा। काम कंप्लीट होना ही चाहिए और वो भी पूरे परफेक्शन में। ही इज अ मैन ऑफ परफेक्शन एंड लास्ट में ही इज अ मैन ऑफ इनॉग्रेशन। जिसकी नींव मोदी जी डालता है उसका इनॉग्रेशन और उद्घाटन भी मोदी जी ही करता है, वो दूसरे को चांस नहीं देते हैं। देखो दोस्तों, ये पूरी बुक है गुजरात के बारे में। दिल्ली का शासन साहब का आप लोगों ने देखा है। मैं गुजरात की बात करूंगा, आपको 2-3 मुद्दे ही दूंगे कि जब भी नरेंद्र भाई मोदी गुजरात में आए तो सबसे पहले बेटी बचाओ की बात कही। दोस्तों, हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद मैं भूलता नहीं हूं तो बेटी बचाओ का अभियान की चीफ मिनिस्टर ने चलाया है तो नरेंद्र मोदी ने चलाया है। बेटी पढ़ाओ की बात नरेंद्र मोदी ने कही। कन्या केरावनी का शुरुआत नरेंद्र मोदी ने किया और प्रवेशोत्सव के कार्यक्रम से गांव में जाके गरीब के घर में से उसकी बेटी को अंगुली पकड़ के उसको स्कूल में ले जाने का काम देश की आजादी के बाद किसी सीएम ने किया तो वो नरेंद्र मोदी था दोस्तों, और मैं उसका साक्षी हूं। और उसके साथ मोदी जी ने शाला प्रवेशोत्सव के बाद एक बड़ा कार्यक्रम रखा था, आरोग्य तपासनी यानी मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर ऑल स्टूडेंट्स फ्रॉम फर्स्ट स्टैंडर्ड। हम कभी कभी बच्चे को स्कूल भेजते हैं तो बच्चा कहता है कि मेरा पेट में दर्द है, यहीं पे कहीं दर्द है, मुझे दिखता नहीं है, तो हम ऐसा सोचते हैं कि ये बहाना बनाता है। लेकिन जब ये सारा में आरोग्य का तपास का कार्यक्रम हुआ तो कितने बच्चे ऐसे निकले कि जिसको आंख का प्रॉब्लम था, नंबर का प्रॉब्लम था, जिसको पेट में दर्द था, कहीं ना कहीं पे पेट में आंत में प्रॉब्लम था, और कितने बच्चे ऐसे निकले कि जिसको हार्ट में भी प्रॉब्लम था। मैं एक मेरे क्षेत्र की बात जो मैंने हाउस में रखी थी, मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, मेरा एक गांव में ऐसा सारा प्रवेशोत्सव का कार्यक्रम हुआ, आरोग्य तपास का, मेडिकल एग्जाम का। एक बच्चे को थोड़ा प्रॉब्लम लगा, डॉक्टरों की टीम को उसको साइड पे बिठाया और उसको बोला कि हम आपको आपके घर आते हैं तुम्हारे माता पिता को मिलने के लिए। बच्चे ने बोला कि मेरे माँ बाप तो मजदूर है, वो तो खेत में गए हैं, तो कि चलो हम शाम को आएंगे। बच्चे ने माँ बाप को बोला जब खेत से आए थे कि आज मेरे साहब आने वाले हैं। तो बच्चे के लिए जब साहब आते हैं तो माँ बाप को ऐसा लगता है कि नहीं नहीं, किसी ने कहीं इन्हें तूफान किया होगा, कोई मस्ती किया होगा। लेकिन जब आके साहब ने बोला कि आपके बच्चे को वो हार्ट में कोई प्रॉब्लम हमें दिखा है, हम उसे अहमदाबाद ले जाके बड़ी हॉस्पिटल में दिखाएंगे। अभी मास्टर तो चले गए, पूरे घर में जो एटमॉस्फेयर था वो बड़ा भारी हो गया। क्यों अहमदाबाद ले जाना है, क्या है? बच्चे ने पूछा उसके बाप को कि पिताजी क्या होगा? बाप ने बोलेगा भगवान अच्छा करेगा। फिर उसको ले गए हॉस्पिटल, ऑपरेशन किया। 10-15 दिन के बाद बच्चा गांव में वापस आया। बच्चे ने उसको बाप को कहा कि पिताजी आप बोल रहे थे भगवान बचाएगा, तो मुझे बचाने वाला भगवान कहाँ है, मैं देखना चाहता हूँ। पिताजी ने कहा कि बेटा मैंने भी नहीं देखा है, लेकिन उसके घर में नरेंद्र मोदी का एनुअल कैलेंडर था जो हम घर में रखते हैं। वो कैलेंडर दिखा के कहा मोदी का फोटो, ये भगवान है।
बच्चे के लिए तो यही इतनी ही बात थी ना, किसने बचाया? तो कि मोदी जी की स्कीम ने बचाया, नहीं तो वो बचने वाला था ही नहीं। ऐसे कितने काम किया है मोदी जी ने, उसका आशीर्वाद मिला है। कभी कभी हमें चुनाव में जाते हैं कांग्रेस वाले के साथ, कभी नोक झोंक होती है, तो मैं कहता हूं कि आप कुछ भी करो, नरेंद्र मोदी के साथ इतने बाल बच्चे का आशीर्वाद है। और 108 की हमारी स्कीम थी गुजरात में जब मोदी जी थे, 108 लगाओ, आपके सगा संबंधी नहीं आएंगे, एक्सीडेंट हुआ होगा तो उसके पहले 108 एम्बुलेंस चली जाती है। ऐसे कितने लोगों की जिंदगी बचाई है, इसका आशीर्वाद मोदी जी को मिला है। और वो एम्बुलेंस में लाख से ज्यादा हमारी माताओं का प्रसूति भी एम्बुलेंस में हो गया है, माता भी बची है, बच्चे भी बचे हैं, उसका आशीर्वाद जमा है ऊपर, इसीलिए मोदी जी जीतते हैं। ऐसी ही एक योजना थी, हम कहते हैं कि मोहम्मद गोज टू माउंटेन, मोदी जी ने उलट दिया, माउंटेन गोज टू महमूद। जो आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस अफसर है, जो ऑफिस में बैठते हैं, काम करते हैं, मोदी जी ने उसको फील्ड में लाया। और हमारे यहाँ गुजरात में गरीब कल्याण मेला का आयोजन किया, पहली दफा पूरे देश में। अलग अलग डिपार्टमेंट के जो भी बेनिफिशियरी है, लाभार्थी है, उसको ढूंढना है। हमारे सतीश भाई डीडीओ रह चुके हैं, ये लोग खुद जाते थे गांव में ढूंढने के लिए। मोदी जी ने बोला जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम है उसकी बेनिफिशियरी की लिस्ट बनाओ, सबको इकट्ठा करो, सुबह में उसके गांव में बस भेजो, नाश्ता दो, पानी दो, जहां ये कार्यक्रम होता है मोदी जी का वहां सबको लेके आओ, सबको जो जो बेनिफिट है वो लाभ वहां ही देना है। यानी जो लोग ऊपर बैठे थे वो गरीबों के कल्याण के लिए नीचे आए। Therefore, I am sometimes saying, mountain goes to Mahmud now. This is the scheme. नरेंद्र जी, मोदी जी यहां आए, जनधन योजना बनाई, हमारे दिल दिमाग में ऐसा किसी का बैठता ही नहीं था कि क्या काम है गरीबों का खाता खुलने की, क्या जरूरत है। लेकिन वो खाता खुलवाने के लिए मैं एक कार्यक्रम में गया था, वो कार्यक्रम में बॉम्बे से बैंक ऑफ बड़ौदा का रीजनल मैनेजर आया था। मैंने बोला आप क्यों आए? यादव जी बोला हम खाता खुलवाने के लिए आए हैं। बॉम्बे से आया था, मेरे भावनगर में आया था। इसीलिए सब अफसरों के पास काम लेने की किसी की ताकत है। मैं इतने सालों से पॉलिटिक्स में हूं, नरेंद्र मोदी जैसी ताकत किसके पास नहीं है। नहीं तो यही अफसर लोग हैं, यही बाबू लोग हैं, लेकिन जो अश्व है ना, वो पहचान जाता है कि ऊपर कौन बैठा है, उसके हिसाब से उसकी चाल तय होती है। सबको मालूम है, गुजरात में भी किया, यहां भी कर रहे हैं मोदी जी। गरीबों की बात क्या है, नरेंद्र मोदी जी ने इंडस्ट्री को भी, जब नरेंद्र मोदी जी हमारे यहाँ चीफ मिनिस्टर थे, वो टाइम पे कहा जाता था कि गुजरात इज अ ग्रोथ इंजन ऑफ इंडिया। हमारे यहाँ वाइब्रेंट समिट का प्रोग्राम हुआ, ग्लोबल समिट का प्रोग्राम हुआ, और पूरे देश में जो इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट जो आता था, सबसे पहले नंबर गुजरात था। ऐसी दोस्तों हमारे पास कितनी नरेंद्र भाई मोदी की क्वालिटी भी है। नरेंद्र मोदी जी हमारे लिए हाथी जैसा है, किसी को पूंछ पे हाथ लगता है तो पूंछ का बोलते हैं, किसी के हाथ में सूंड आ गई तो वो सूंड का बखान करते हैं, किसी के हाथ में कान आ गए तो वो कान का बोलते हैं, किसी के हाथ में दांत आ गए तो दांत का बोलते हैं। मोदी जी सर्वव्यापी है, ही इज अ परफेक्ट मैन। और इतना याद रखना दोस्तों, मोदी जी एक कदम चलेगा, हिंदुस्तान 2 कदम चलेगा। मोदी जी का कदम कभी पीछे नहीं रहे, इतना हम लोगों को कोशिश करना है। भारत माता की जय, जय भारत। Thank you very much. Thank you very much, sir.
I request the dignitaries on the dais to kindly release the book, Golden Day, 7th October 2001, by Shri Girish M. Sharma ji. Thank you very much. Ladies and gentlemen, it is an honor for University of Delhi, as we have with us today Shri Ram Kripal Yadav ji, former Union Minister, Government of India. पटना में जन्मे श्री राम कृपाल यादव जी ने अपना राजनीतिक सफर एक छात्र अध्यक्ष के रूप में किया, फिर कॉलेज सेनेटर, वार्ड पार्षद, डेप्यूटी मेयर, एमएलए का कार्यभार संभाला, 6 बार सांसद रहे और 1 बार मोदी जी की ही सरकार में 2014 से 2019 तक वे केंद्रीय मंत्री बने। आज भी वे प्रतिदिन पटना के गांधी मैदान में मॉर्निंग वॉक में ही लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं को निपटाने में उनकी मदद करते हैं। I request sir to kindly share his thoughts with us. नमस्कार। मंच पर उपस्थित आज के इस कार्यक्रम के हीरो मैं कहूँगा, और इस पुस्तक के राइटर आदरणीय श्री गिरीश शर्मा जी, मंच पर उपस्थित गुजरात गवर्नमेंट के पूर्व मंत्री और गुजरात के सीनियर लीडर श्री आत्माराम भाई जी, इस विश्वविद्यालय जिनके प्रांगण में, जिनके सहयोग से आज हम यहाँ खड़े हैं, विद्वान प्रोफेसर वाइस चांसलर श्री योगेश सिंह जी, मंच पर उपस्थित शैलेंद्र कुमार जैन जी, प्रोफेसर बलराम पानी जी, श्री प्रकाश जी, मनोज सिन्हा जी और अन्य सभी सम्मानित अतिथिगण और इस सभागार में उपस्थित सभी विद्वान जन भाइयों और बहनों, आज मुझे एक बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है। खासतौर पर गिरीश जी का मैं दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जो ने एक ऐसे महान पुरुष के ऊपर पुस्तक लिखा है जिनकी चर्चा न सिर्फ हिंदुस्तान में, दुनिया के हर कोने में हो रहा है, और उनके साथ रह करके जो दिन गुजारे हैं, पल गुजारे हैं, समय गुजारा है, उसका विस्तार से वर्णन किया है। और कई अध्याय में इसको इन्होंने लिखा, मैं पढ़ गया, 1.5 दिन में मैं पढ़ गया था इसको। इस पुस्तक को मैं 1.5 दिन में, इतना इंटरेस्टिंग है ये, और बहुत कुछ सीख मिलता है। अगर मैं विस्तार से कहूँ तो शायद लंबा हो जाएगा, समय का अभाव भी है, वैसे भी निर्धारित समय से हम ज़्यादा चल रहे हैं और विश्वविद्यालय के इस प्रांगण में बैठे हैं, और ख़ास तौर पर वीसी साहब और प्रिंसिपल साहब हैं बैठे हुए, सभी विद्वान जन हैं, तो छात्र हमेशा अनुशासित होता है, और पटना विश्वविद्यालय, ये दिल्ली विश्वविद्यालय के और भी है। तो मैं ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगा। मोदी जी पर लंबी बातें कही जा सकती हैं,
मैं जिंदगी का 40 साल सार्वजनिक जीवन में बिताया हूं। छोटा सा परिचय मेरी बहन ने कराया मुझसे, नीचे से ऊपर उठ करके मैं यहां तक आया हूं। मैं उस साधारण परिवार का आदमी हूं। आपने सुना कई बार मैं सांसद भी रहा, विधायक भी रहा, पटना शहर का डिप्टी मेयर रहा, बहुत कम उम्र में बन गया था। तो छात्र जीवन से लेकर के आज तक मैंने जो अनुभव प्राप्त किया है और बहुत सारे राजनेताओं को बहुत करीब से देखा है, बहुत करीब से देखा है। और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, 14 से मैं जुड़ा हूं भारतीय जनता पार्टी से। चुनाव जीता पटना से, पाटलिपुत्रा से, और चुनाव जीतने के बाद ही मैं भारत सरकार का मंत्री बन गया और कैबिनेट राज्य मंत्री के रूप में मैं ग्रामीण विकास मंत्रालय, स्वच्छता मंत्रालय को भी संयुक्त से संभाला है। मोदी जी को जितना मैं दूर से जानता था, उनके व्यक्तित्व से आकर्षित हुआ। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में मुझे उनके सानिध्य में जाकर बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। और सच कहिए, जैसा कि हमारे भाई साहब ने कहा, आत्माराम भाई ने कहा, उनके कुछ चीजों की जानकारी दी, कितना प्रतिबद्धता है काम के प्रति। और मैंने देखा कि जब कभी हम लोग के साथ मीटिंग लिया करते थे, कुछ न कुछ टास्क दिया करते थे। और आपने देखा होगा पिछले 10 साल के कार्यकाल में सरकारें बहुत आई। मैं कोई पॉलिटिकल मंच नहीं कि मैं उनकी चर्चा करूं, पर व्यक्तित्व चूंकि उस सरकार में भी मैंने रहा है, मैं विपक्ष में, सत्ता में, विपक्ष में, सब में रहा हूं। तो जो सरकार का कमिटमेंट हुआ करता था, सरकार की प्रतिबद्धता होती है, जनता वोट करती है, जनता सत्ता में बैठाती है, कुछ आशा रखती है। आपने सुना होगा गरीबी हटाओ का नारा, लंबे काल तक गरीबी हटाओ का नारा लगा। कितनी गरीबी हट सके, आप विद्वान जन बैठे हुए हैं, मैं उसको नहीं कह सकता, पर मोदी जी ने कहा 2018 तक हर घर में बिजली पहुंचा दूंगा। और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मोदी जी सिर्फ कहते नहीं, करके दिखाते हैं। कोई ऐसा घर नहीं है जहां बिजली 24 घंटा बिहार जैसे पिछड़े प्रदेश में भी लगातार मिल रहा है। अगर मैं झूठ बोलूं तो आप जो कह लीजिए। मोदी जी ने कहा मैं हर गरीब को मकान दूंगा। कमिटमेंट, जैसा उन्होंने कहा, माननीय मंत्री जी ने कहा, कमिटमेंट के साथ काम करने का जज्बा रखने का काम करते हैं। धन की भी आपूर्ति का व्यवस्था, अगर प्लान है तो व्यवस्था, सब कुछ, कहां से पैसा आएगा, कितना खर्च होगा, क्या समय लिमिटेशन होगा। तो गरीबी हटाओ तो नारा तो गरीबी हटी नहीं कभी। गरीब बेचारे भरे हट गए, गरीबी नहीं हटी। मगर कहा कि मकान बनेगा तो मकान बना, और मकान जो बचे हुए हैं लोग हैं उनके लिए भी प्रतिबद्धता के साथ मकान बन रहा है। हाँ, हर गांव में सड़कें जाएगी। आज हिंदुस्तान का कोई ऐसा गांव नहीं है जो पक्के सड़क से जुड़ा नहीं है जिसका नाम है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। ये प्रतिबद्धता है, कमिटमेंट है, और उसी कमिटमेंट के बल पर तो लोगों ने भरोसा करने का काम किया है। कहा हर घर में हम शौचालय का निर्माण करेंगे, स्वच्छ भारत अभियान। जब 15 अगस्त 2014 को लाल किला से माननीय प्रधानमंत्री जी ने चर्चा किया, मोदी जी ने, कि शौचालय के निर्माण का, स्वच्छता की बात की, कई लोगों ने मजाक उड़ाया। आज देखिए प्रतिफल क्या हो रहा है। गांव में किस तरह से लोग खुले आकाश में, खासतौर पर मां बहनें खुले आकाश में शौच जाया करती थी, उनकी इज्जत भी जाती थी और बीमारी का भी शिकार होते थे। उससे मुक्ति दिलाने का काम किसी ने किया है तो श्री नरेंद्र मोदी ने करने का काम किया। ये प्रतिबद्धता है और देश की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि अनेकों ऐसे काम जिसकी चर्चा करूं तो शायद लंबा हो जाएगा। मैं यही कहता हूं, एक छोटा सा, देखिए कितना विजन है। अभी चर्चा कर रहे थे, हेल्थ की चर्चा कर रहे थे, कई स्कीम की चर्चा की, प्रधानमंत्री जन औषधि। अब देखिए कितना सस्ता
अब जाके ट्राई करिए, पता नहीं कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं लोग, विश्वास मगर हुआ है। अब तो सरकार ने भी उसको कहा है कि आपको इसको पुशअप करना पड़ेगा। जो 28-30 रुपए का 50-50 रुपए का सिरप मिलता है, वो 15 से 16 रुपए में खांसी का सिरप मिलता है और ठीक हो जा रहा है। 10 रुपए 5 रुपए में सस्ती दवा मिल रही है। कितना लोगों को फायदा हो रहा है। और देश हमारा निश्चित तौर पर जहां विकसित हो रहा है, आत्मनिर्भर हो रहा है, देश की शान दुनिया में बढ़ रही है, ये किसी और ने नहीं, देश के लोगों ने मोदी पर भरोसा किया है। और मैं तो बिल्कुल पवित्र मन से, ईमानदारी और निष्ठा के साथ, देश की प्रतिबद्धता के साथ देश को ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं और अपने पैरों पर खड़ा कर रहे हैं। और विकसित भारत का जो सपना मोदी जी ने देखा है, उस सपने को साकार करने का काम प्रारंभ कर दिया है। ये जो तीसरा चरण का सरकार हमारे बना है, उसमें इसमें सब लोगों की आवश्यकता है। हम सब लोग लगेंगे तभी वो उनका जो एम है, विश्व गुरु बनने की बात कही जा रही है। और निश्चित तौर पर भारत ऐसे देश में वो सारी क्षमता है, बुद्धि है, विवेक है, सोच है, सब कुछ है। हमारा ऐतिहासिक धरोहर रहा है, पूरा हिंदुस्तान के कण कण में इतिहास बसा हुआ है। और निश्चित तौर पर इस पवित्र धरती पर, मां भारत माता के धरती पर भारत को आगे ले जाने के लिए मोदी जैसा नेतृत्व हमें मिला है। मुझे गौरवशाली इतिहास है। निश्चित तौर पर इस इतिहास को हम आगे ले जाएंगे और 2047 तक विकसित भारत सपना जो देखा है मोदी जी को, उसको पूरा करने का काम हम सब लोग उनके साथ मिलकर करने का काम करेंगे। विजन उनका है, प्रयास उनका है, हम सब लोगों के सहयोग की आवश्यकता है। जहां से विद्या मंदिर शिक्षा में बैठे हैं, ये भारत में, मैं बिहार से आता हूं, बहुत सारे लोग बिहार के ही होंगे, कोई ऐसा कोना नहीं है जहां बिहार अपना झंडा खड़ा करके नहीं रह रहा है। तो सबसे जरूरी आज के इस पवित्र मंदिर में हम खड़े हैं। तो ये भी इतिहास, अभी बीसी साहब ने कहा, इसका इतिहास बताया इस भवन का, यहीं से कभी शासन हुआ करता था। वो भी इतिहास जानने का काम ऐतिहासिक मौके पर इतिहास हम निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे आप सभी प्रबुद्ध जनों से। शिक्षा के बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। और ये सोच हम घर तक, हर घर तक पहुंचाने का काम किया है। और आज देश को अगर विकसित होना है, देश आगे को ले जाना है, हर घर में शिक्षा की रोशनी, आप निश्चित तौर पर शिक्षा की रोशनी ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। मुझको और नीचे तक ले जाना है। जिस दिन भारत के हर घर में शिक्षा रूपी रोशनी चली जाएगी, भारत को विकसित होने में, विश्व गुरु बनने में कोई नहीं रोक सकता है। मैं पुनः गिरीश जी का, इनके पूरे टीम को दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आज 7 अक्टूबर 2001 को इन्होंने स्वर्ण दिन लिखा है और इसमें कई बातें हैं। मैं आपको फिर गिरीश जी और आपको पूरे तौर पर हम आभार व्यक्त करते हुए और सभी को प्रणाम करते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं। बहुत धन्यवाद। Thank you very much, sir. I request Professor Yogesh Singh, Honorable Vice Chancellor, University of Delhi, to kindly share his thoughts with us. Namaste, good afternoon. आदरणीय शैलेंद्र कुमार जैन, फाउंडर एंड ग्रुप एडिटर, अमर भारती डेली न्यूज़पेपर, श्री राम कृपाल यादव जी, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, श्री आत्माराम भाई परमार, फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, श्री गिरीश शर्मा जी, राइटर, प्रोफेसर बलराम पानी, डीन ऑफ कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, प्रोफेसर श्री प्रकाश सिंह, डायरेक्टर, साउथ कैंपस, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, प्रोफेसर मनोज सिन्हा, प्रिंसिपल, आर्यभट्ट कॉलेज, श्री प्रकाश भरोट, जर्नलिस्ट, respected guests, deans, directors, distinguished principals, outstanding faculty, Dr. Kakkar, Dr. A.K. Bhagi,
my dear friends and students, good afternoon, namaste to all of you. आज पुस्तक विमोचन का कार्यक्रम है, पर मेरे लिए दो चीज बहुत अच्छी हुई आज। पहली बात तो कि 3 साल पूरे हुए, उस 3 साल के लिए आप सबके सहयोग के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। मुझे लगा ही नहीं कि 3 साल हो गए, और दूसरा ये लगा ही नहीं कि मैं बाहर से आया था, मुझे लगता है मैं यहीं से आया था। और दूसरी जो अच्छी बात लगी मुझे, और इससे भी ज्यादा अच्छी बात लगी, और गिरीश भाई ने वो कहा कि योगेश सिंह गुजराती, ये मेरे लिए बहुत बड़ा एक टाइटल भी है, सम्मान भी है कि जितना गुजरात से मुझे सम्मान मिला और गुजरातियों से सम्मान मिला, वो मेरे जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि भी है, मेरी पूंजी भी है। मैं हृदय से गुजरात का और गुजरात के लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। आज की पुस्तक 7 अक्टूबर 2001 गोल्डन डे, 7 अक्टूबर 2001 को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार मुख्यमंत्री की शपथ ली। बड़ी बात है और अच्छी बात है कि देखिए, ये यात्रा जो उनकी शुरू हुई 7 अक्टूबर 2001 और आज है 7 अक्टूबर 2024, 23 साल की गौरवमयी यात्रा है। उसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी बधाई और भारत के लोगों को भी बहुत बहुत बधाई। पर यह पुस्तक थोड़ी अलग है, क्योंकि जब वो भारत के प्रधानमंत्री बने तो उनके बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। हम दिल्ली वालों ने भी बहुत कुछ उसमें से देखने का प्रयास किया, कई किताबें उन पे आई हैं। ये किताब प्राइमरीली उससे पहले के कालखंड की है। जो इस किताब को यूनिक बनाती है, अलग बनाती है, कि 2001 से पहले की है। ज्यादातर प्रसंग इसके अंदर वो संस्करण है वो 2001 से पहले के हैं। और ये किताब जिन्होंने लिखी है गिरीश जी ने, वो गांधीनगर के संघ कार्यवाह रहे और उन्होंने अपने विभाग प्रचारक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ जो संस्मरण है उसको साझा करने का प्रयास किया इस किताब के अंदर। तो ये इसी कारण से थोड़ी अलग हो जाती है। अब मैं सोच रहा था, अभी थोड़े दिन पहले जून 9, 2024 को जब शपथ विधि का कार्यक्रम हुआ, तीसरी बार उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री की शपथ ली, तो मैं उस कार्यक्रम में था। तो जब उन्होंने बोला मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, तो एक रोमांच का अनुभव हुआ। ऐसा लगा कि भारत ने और भारत माता ने ऐसे सपूत को जन्म दिया कि 23 वर्ष से इस देश को बदलने का जो प्रयास किया है, उसके लिए सबसे ज्यादा अगर किसी का आभार हमें व्यक्त करना है तो भारत के लोगों का और गुजरात के लोगों का आभार व्यक्त करना है। क्योंकि जब वो 2014 में दिल्ली की तरफ आए, उस दिन कार्यक्रम में मैं था और मैं एक बहुत उस भीड़ में मैं बैठा हुआ था। भारतीय जनता पार्टी गांधीनगर के कार्यालय में वो कार्यक्रम था। तो कितने लोग उस दिन रो रहे थे जब वो प्रधानमंत्री बनने के लिए जा रहे थे, तो सब कह रहे थे। कितना एक वो दृश्य था कि लोग रो रहे थे। सबने कहा नहीं चलो प्रधानमंत्री जा रहे हैं। और अगले दिन गुजरात के अखबारों में थी आऊजू गुजरात, ये सब अखबारों में खबर छपी कि आऊजू गुजरात, यानी मैं गुजरात वापस आऊंगा। ऐसा कहकर वो निकले थे। वापस तो कब जाएंगे, ये दिल्ली ही उनका गुजरात है। एक बहुत बड़ी बात है, दिल्ली ही उनका गुजरात है। क्या बात है। मैं 23 साल की जो जर्नी है, क्या समर्पण की जर्नी है। ये यात्रा है भारत के सौभाग्य की और भारत के यशस्वी पुत्र की एक गौरव यात्रा है। पर ये जो किताब है ये अलग है, इसके संस्मरण अलग हैं। आप सब जब इसे पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि अंग्रेजी में कहावत है, कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज बिफोर, कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज बिफोर। और हिंदी में जिसको कहते हैं होनहार बीरबान के होत चीकने पात, यानी जिसने ऊपर जाना है वो बहुत सारी छोटी छोटी घटनाओं से वो साक्षी बनता है उसका। सिर्फ उसको पढ़ना आना चाहिए हमें।
ऐसी घटनाओं को जो नरेंद्र मोदी जी को, भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री को दूसरों से अलग करती है, ऐसे संस्मरणों को इन्होंने इस पुस्तक में लिखा है। और जब मैं पढ़ रहा था इस किताब को, मैं भी लगभग 4-5 घंटे में पढ़ गया किताब को, तो मुझे लगा क्या बात है। आपका बहुत बहुत आभार। ये वो कहानी है जो 1987 में, देखिए 2001 के बाद तो बहुत लोग जान गए, बहुत सारी चीजों को भी जान गए। 1987 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जब तय किया, उनको भारतीय जनता पार्टी गुजरात प्रदेश में भेजा गया, संगठन मंत्री की उनको जिम्मेदारी, महामंत्री की जिम्मेदारी मिली। वहां से एक नया जीवन करवट ले गया। आदरणीय परमार जी ने बहुत सही कहा कि मैंने उनको संगठक के रूप में भी देखा और सरकार चलाते हुए भी देखा, और वो तो सरकार में उनके सहयोगी भी लंबे समय रहे हैं। पर जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेदारी पे वो थे, उसके साथ पूरी तरह से निर्वाह किया। कोई ये नहीं कह सकता कि निर्णय गलत हो गया। उनके लिए कभी कोई ये नहीं कह सकता कि ये निर्णय गलत हो गया। जिसने भी वो निर्णय लिया, उस निर्णय को सही और गौरवान्वित करने का काम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया। इससे एक बात निकलती है कि कोई बड़ा बनता है ना, तो उसमें कुछ तो होता है अलग, कुछ तो अच्छा होता है, कुछ तो, अगर वो बड़ा बना है। ये पुस्तक ऐसी घटनाओं की साक्षी है। लगन, मेहनत, संघर्ष, समझ और संस्कार। लगन, मेहनत, संघर्ष, समझ और संस्कार सभी का सामंजस्य है भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री। और यह पुस्तक उन घटनाओं से हमें बताने की कोशिश करती है, और आप सब जब पढ़ेंगे तो आपके मन में एक गर्व की अनुभूति होगी। इस किताब में आदरणीय प्रधानमंत्री कह के संबोधित कर रहा हूं, क्योंकि आज सच तो यह है कि वो प्रधानमंत्री हैं और हम सब के लिए गौरव की बात है। तो उन्होंने इस पुस्तक में लिखा, उन्होंने उनके बयान को कोट किया। उन्होंने कहा कि भगवान ने मुझे ऐसा वरदान दिया है, भगवान ने मुझे ऐसा वरदान दिया है कि कोई छोटी बात मेरे मन में आती ही नहीं। न तो वो मुख्यमंत्री थे उस समय, न वो प्रधानमंत्री थे उस समय, भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री थे गुजरात के, जिस समय बात कही कि कोई छोटी बात मेरे मन में आती ही नहीं। यहां से व्यक्ति बड़ा होना शुरू होता है। जब छोटी बात से वो निकल जाता है तो बड़ा होना शुरू होता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की पंक्तियां हैं कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। मन हार कर मैदान नहीं जीते जाते हैं, मन हार कर मैदान नहीं जीते जाते हैं, और ना ही मैदान जीतकर मन ही जीते जाते हैं। यहां तक तो उनके ऊपर ठीक बैठती है। वाजपेयी जी का तो आगे ले गए इस कविता को। वो ऐसा नहीं कि कोई गम ही नहीं अपने पराये, कुछ कम भी नहीं, प्यार इतना परायों से मुझको मिला, न अपनों से बाकी है कोई गिला। पर उसका संदर्भ नहीं है, ये 4 लाइनों का ही संदर्भ है यहाँ पे वाजपेयी जी की। मैंने इसलिए कहा कि आपको लगे कि मेरे को पता है आगे वाली भी, मैंने इसीलिए कहा कि मुझे पता है आगे वाली भी, लेकिन संदर्भ में ये 4 ही पंक्तियां आती हैं कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता। इसलिए याद रखें कि गमलों में बरगद के पेड़ नहीं उगा करते, गमलों में बरगद के पेड़ नहीं उगा करते। अगर हमको बरगद बनना है, हम सबको अगर बरगद बनना है, तो हमको अपने गमले तोड़ने पड़ेंगे। और किस चीज के गमले? गमले छोटी सोच के, गमले निगेटिविटी के, गमले जलन के, गमले दूसरों के प्रति द्वेष रखने के, ये तोड़ने पड़ेंगे, तभी बरगद बनेंगे। मेरी आपसे अपेक्षा, जब आप पढ़ेंगे तो ऐसे गमले तोड़िए, केवल अच्छा सोचिए। अगर आदरणीय प्रधानमंत्री के जीवन से कोई चीज सीख लेनी चाहिए हमको, कि उनको अच्छाई के पेड़ लगाने आते हैं। जहां गए अच्छाई के पेड़ लगाए। आज वो कहीं कहीं फल दे रहे हैं, नहीं तो आने वाले समय में देंगे, और आने वाली जनरेशन याद करेंगी कि ऐसा भी कोई व्यक्ति था। जब ये पेड़ सब बड़े हो जाएंगे तो अच्छाई के पेड़ लगाने हमको भी चाहिए। अभी उन्होंने कहा कि एक पेड़ मां के नाम, बात छोटी सी है, असर व्यापक है उसका। जब आप मां के नाम पर पेड़ लगाते हैं तो आप उसकी चिंता भी करते हैं, आपको एक लगाव भी होता है कि ये मेरे मां ने पेड़ लगाया। तो ऐसा व्यक्तित्व तो हमारे साथ है, ये बहुत बड़ी बात है। एक और घटना का उल्लेख है, गुजरात में आजकल नवरात्रि चल रही है, तो गरबा का बहुत आयोजन होता है, हर शहर में होता है। तो
इन्होंने तो जो संदर्भ लिया उसमें कहा कि भाई गरबा का आयोजन सरकार भी कराएगी। उससे पहले सरकार नहीं कराती थी और आज भी वो परंपरा जारी है अहमदाबाद और गांधीनगर में कि सरकार भी बहुत बड़े लेवल पे करती है। पर मैं यहां ये बात नहीं, दूसरी को उल्लेख करूंगा। मैं गुजरात में वाइस चांसलर था, बड़ौदा में बहुत बड़ा गरबा होते हैं, तो मुझे बुलाया गया, मेरे पेरेंट्स आए हुए थे, तो मैंने कहा कि उनको भी लेकर चलते हैं। तो हम लोग गरबा देखने गए। वो हमारी जिंदगी का पहला अनुभव था देखने का। करना तो हम सवाल ही पैदा नहीं होता। उत्तर प्रदेश का आदमी तो ऐसा सोच ही नहीं सकता, उत्तर प्रदेश में ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं सच बोल रहा हूं बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ में। रात का वक्त था, 30,000 लोग विशेष परिधानों में, कपड़ों में जिस तरीके से गरबा कर रहे थे। मेरे फादर साहब थे, उन्होंने कहा अद्भुत, ऐसा तो सपने में भी नहीं देखा। मैं यूपी का आदमी ऐसी कल्पना ही नहीं कर सकता कि एक ऐसा प्रदेश हमारे देश में है जहां पर इतना सम्मान के साथ, भक्ति के गीतों के साथ इतने सारे बच्चे, आदमी, औरतें नृत्य कर रहे हैं और कोई दुर्घटना का सवाल पैदा नहीं होता। मैं सारे गुजरात को इसके लिए बधाई देता हूं, उस सत्कार की, संस्कार की और उस कल्चर की कि हम कल्पना नहीं कर सकते। जो उत्तर भारत के मेरे भाई सब हैं, हम लोग हैं भाई बहने, हम नहीं कल्पना कर सकते। वो तो देखने से ही आपको अंदाजा होगा। उसका बहुत अच्छा उल्लेख इन्होंने किया। एक घटना का और मेरा मन है, वो लेखक साहब ने बहुत अच्छे से लिखी है, उसके अंदर आप लोग भी पढ़ेंगे। एक गुजरात का गांव है, अंतिम गांव ऐसा बोलते हैं, वहां से पाकिस्तान की सीमा शुरू होती है, धोरणो गांव। तो धोरणो गांव, ये बात बहुत पुरानी है, ये 1980s की है, घटना है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं धोरणो गांव में इस बार दीपावली मनाना चाहता हूं और उस गांव की यह विशेषता है कि वहां से पाकिस्तान के गांव की लाइटें दिखती हैं। तो उन्होंने सोचा, बहुत सारे लोगों को कहा कि मैं वहां पे दीपावली मनाऊंगा, तो आप में से जो चलना चाहें, वो संघ के प्रचारक थे उस समय, विभाग प्रचारक का शायद दायित्व था उस समय। तो उन्होंने कहा कि जो लोग भी मेरे साथ चलना चाहें, हम चलेंगे धोरणो गांव। अब सही बात तो है कि तो दीपावली का पर्व है, और दूसरी बात यह है कि धोरणो गांव में 15, 20, 30 लोग परिवार रहते होंगे मुश्किल से। वहां न तो कोई खाने की व्यवस्था, ना पीने के पानी की व्यवस्था, ना कोई व्यवस्था। ऐसे में क्यों जाना? पर खैर, उनके 2 मित्र उनके साथ तैयार हुए। 3 लोग, कहानी को छोटा करता हूं, ये लोग धोरणो गांव पहुंचे। जो एसटी की बस से गए उसमें शीशे नहीं थे, तो मरुस्थल में बस गई तो सारा, आप जैसे होता है, पूरा रेत रेत हो जाता है आपके ऊपर में। और ये धोरणो गांव पहुंचे, लेकिन इनके उत्साह में कोई कमी नहीं थी। पहली बार वहां आए, उतरे हैं, तो 15 परिवारों का, 16 परिवारों का गांव, और वो छोटे छोटे झोंपड़ियों में रहते थे। तो वो बाहर आए, तो सबसे बुजुर्ग थे जो थे, उन्होंने इनको कहा, नमस्ते करी कि हम आपसे अहमदाबाद से मिलने आए हैं। तो उन्होंने कहा कि आप अहमदाबाद से हमसे मिलने आए? कि जी हाँ, हम आपसे मिलने आए हैं, कुछ सीखने आए हैं आपसे। खैर, वो सबसे बुजुर्ग थे, वो खुश हुए, उनको बिठाया, चाय वाय पी, और वो जो उल्लेख हुआ, कई सारी बातें हुई। तो रात में जब ये एक बार 2 बजे उठे, तो देखा कि वो सारा इलाका जो है एक बहुत ही अद्भुत दृश्य दे रहा था। रेत के ऊपर चांदनी रात थी, तो एक ऐसा लग रहा था जैसे सफेद चादर बिखरी हुई है, और एक अद्भुत दृश्य था। तो इन्होंने अपने साथ दोनों मित्रों को उठाया कि देखो यार, कितनी अच्छी है जगह। उन्होंने भी देखी। देखते तो बहुत लोग हैं, करते नहीं है। खैर, वो बात खत्म हुई, और उसके बाद जब सुबह वो चल रहे थे, तो उन्होंने कहा कि आप आए हमारे गांव, फिर आइएगा, तो एड्रेस लिख दो अपने। तो उन्होंने उनकी डायरी ली, वो सरपंच थे वो उस गांव के, उनकी डायरी ली, और उस पर इन्होंने अपना नाम लिखा। पहले वाले ने लिखा, दूसरे ने लिखा, इन्होंने भी लिखा, और नाम लिखा, पता लिखा गांधीनगर का, और एक सेंटेंस लिखा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उस पर। ये बात पुरानी है, कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज बिफोर। कोई घटना आज हो रही है, बहुत दिन पहले उसकी शुरुआत हो जाती है, उस व्यक्तित्व की शुरुआत हो जाती है। कोई नरेंद्र मोदी एक दिन में नहीं बनता। क्या लिखा उन्होंने?
और इन्होंने बहुत अच्छे से कोट किया, बड़ा मार्मिक तरीके से उसको कोट भी किया है। वो लिखते हैं, साइन किया, नाम लिखा, पता लिखा और लिखा, भगवान भविष्य में मुझे शक्ति देंगे तो मैं धुर्रों गांव के लोगों के लिए अवश्य कुछ करूंगा, यह मेरा संकल्प है। समय बीत गया, वो सरपंच जो थे उनकी भी मृत्यु हो गई, उनका बच्चा जो लड़का था वो सरपंच हो गया और 2001 7 अक्टूबर आ गया और ये गुजरात के मुख्यमंत्री बन गए। तो जो सरपंच का बच्चा था, उसके मन में भाव आया कि उसने जो बस आती थी गांव में, उसके ड्राइवर को भी दिखाया कि ये वही आदमी है जो हमारे घर आए थे। कहा जी हाँ ये वही आदमी है। तो वो जो सरपंच का बच्चा था वो उसको डायरी को लेके गांधीनगर सेक्रेटेरिएट गया और उसने कहा कि ये हमारे घर आए थे और ये मेरे पास एक वो है। तो उन्होंने उनको बताया कि ऐसे से आपसे कोई गांव के कुछ लोग मिलने आए। तो वो इमीडिएटली उनको बुलाया, बात करी, तो उन्होंने उनको दिखाया। उन्होंने कहा कि आप कुछ करिए। तो उन्होंने कहा कि गुजरात सरकार कुछ करेगी, ऐसी सी बात कह के बात खत्म हुई उस समय तो। लेकिन उसको बहुत रोचक और अच्छे तरीके से इन्होंने इसमें संस्मरण में लिया कि 4-6-10 दिन के बाद ही गुजरात सरकार के बहुत सारे लोग, अधिकारी वहां पहुंचने लगे। उस गांव में बिजली की व्यवस्था हुई, पानी की व्यवस्था हुई। पानी नहीं था गांव में। वो घटना बहुत है कि थोड़ा सा पानी उन्होंने दिया कि हम इससे 2 दिन काम चलाते हैं, वो हमको 2 घंटे नहीं चलता उसमें कम पानी में। तो वो सब उन्होंने जो व्यवस्थाएं करी, वो छोड़िए, आज वो जो धुर्रों गांव है, जिस तरह से उसको डेवलप किया, आपने अमिताभ बच्चन की एक ऐड देखी होगी, कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में। और साथ में क्या था, जिसने कच्छ नहीं देखा उसने कुछ नहीं देखा। जिसने कच्छ नहीं देखा उसने कुछ नहीं देखा। और वहां से रणोत्सव का आयोजन होता है। इतने देश भर से, विदेशों से लोग आज उस जगह को देखने जाते हैं और धुर्रों गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन स्थल घोषित किया गया है। यह है नरेंद्र मोदी। और भारत ऐसे व्यक्ति के हाथों में कैसे सुरक्षित नहीं होगा? यानी जब वो कब संकल्प लिया, फिर उस संकल्प को जब पूरा किया तो ऐसा पूरा किया कि वो एक उदाहरण बन गया और अमिताभ बच्चन उसके ब्रांड एम्बेसडर बने। और आज कच्छ जो है कितना बदला है। मैं भी कहता हूं आप लोग कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में, होकर आइए, अच्छा लगेगा आपको। और भारत में क्या है, जो त्याग करते हैं ना, उसकी महिमा है। ये भारत के हर देश का अपना अपना स्वभाव होता है। अमेरिका का अपना स्वभाव है। ये जो भारत का स्वभाव है ना, वो है त्याग करने वाले लोगों के पीछे लगता है ये देश। ये इस देश की विशेषता है। अगर आप इससे डेविएट होंगे तो देश का प्यार आप नहीं पा सकते, देश में सम्मान और प्यार नहीं पा सकते यदि आप इससे डेविएट होंगे। इसी कारण से इन्होंने बहुत अच्छा लिखा कि पुस्तक में कि जो भगवा रंग है ना, वह त्याग, तपस्या और वैराग्य का रंग है। ये भगवा रंग जो है, त्याग, तपस्या और वैराग्य का रंग है। ये भारत का रंग है, भारत की सभ्यता का रंग है, भारत के संस्कार का रंग है और ये गुजरात का रंग है। तो अगर आपने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रचारक के रूप में जानना है तो पुस्तक जरूर पढ़ो। एक व्यक्ति के रूप में जानना है तो पुस्तक जरूर पढ़ो। आपको अपने का। और एक और बात जो मुझे बड़ी अच्छी सी लगी, उसमें एक घटना का उल्लेख है, तो वो समझा रहे हैं, क्योंकि ये संघ में बहुत आराम से कहा जाता है कि संघ का कार्य तो ईश्वरीय कार्य है। तो उसमें इन्होंने उल्लेख भी किया उसका कि संघ का कार्य तो ईश्वरीय कार्य है। तो मैं सोचने लगा कि जिसने भी ये गढ़ा होगा सेंटेंस, वो कितना पावरफुल है। आप कभी सोचिएगा इस पर, जो सोशल साइंटिस्ट हैं, कि व्यक्ति के मन में निराशा आए, ये स्वाभाविक मानवीय प्रवृत्ति है। लेकिन वो निराशा से बाहर आए, कैसे आए? एक सेंटेंस, ये ईश्वरीय कार्य है, मेरा कार्य है ही नहीं, भगवान का काम है। इस पर बहुत सारा रिसर्च की भी आवश्यकता है कि आपको अपने कार्य में आनंद आना चाहिए। और एक और बात, जब वो भारत के गुजरात के मुख्यमंत्री बने 7 अक्टूबर 2001 को, तो जिस सीएम हाउस में उनको शिफ्ट होना था, तो उसमें पहली बार जाना था, शपथ विधि हो गई,
तो सब लोगों ने कहा कि अपने फैमिली को बुला लीजिए, किसी ने कहा कि साधु संत के पूजा करेंगे, किसी ने कहा कलश पूजन कैसे होगा। बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ कहा। तो उन्होंने कहा कि हमारे यहां पर जो कर्मचारी काम करते हैं, कौन उनमें दलित कर्मचारी कौन है? तो उन्होंने कहा कई हैं। कहने उनमें से एक बिटिया है को लेकर आओ, उसकी वो बिटिया कलश पूजन करेगी तो मैं इस घर में आऊंगा। पहला दिन है मुख्यमंत्री का, यानी सामाजिक सरोकार जो है, सद्भावना जो है, वो उनके ब्लड में है। ये कोई मैसेज देने के लिए इमीडिएटली नहीं हो जाता एक दिन में किसी व्यक्ति के में। और वो कलश पूजन उस दलित बिटिया ने किया, जहां से उन्होंने वो रहना शुरू किया। अंतिम बात, 18 अक्टूबर 2014 में उस समय गुजरात में एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा का वाइस चांसलर था और मेरे फादर की 18 अक्टूबर को मृत्यु हुई। नरेंद्र भाई तो प्रधानमंत्री थे उस समय। तो मैंने सोचा कि उनको क्या बताना, कोई ऐसी बात नहीं है प्रधानमंत्री को क्या बताना। लेकिन मैं हैरान हूं कि 3 दिन के बाद वहां से संदेश, एक सांत्वना संदेश उनकी तरफ से मुझे आया और वो डिलीवर किया गया, दिल्ली में डिलीवर किया गया। मैं आज भी हैरान होता हूं कि उनको कैसे मालूम पड़ा। मैं सच बोल रहा हूं, आज इस घटना का उल्लेख एक भारी मन से कर रहा हूं। मुझे नहीं पता उनको कैसे मालूम पड़ा, मैंने उनको नहीं इन्फॉर्म किया, कहां से मालूम पड़ा। लेकिन वो बात नहीं है, बात है कि एक व्यक्ति कितना ज्यादा सेंसिटिव हो सकता है, संवेदनशील हो सकता है। इन्होंने भी कई घटनाएं उसमें दी हैं। उसी घटना से मैंने प्रेरणा होकर कि वो जब आई चिट्ठी तो मेरा मन भीग गया कि देखो क्या बात, कमाल की बात है। अगर मैंने उनको सूचना दी होती, चिट्ठी आई होती तो कोई खास बात नहीं थी, ठीक है, वो आ गई तो मैंने बताया था, उन्होंने लिख दिया। पर ऐसा था नहीं, मैं आज बता रहा हूं, मैंने नहीं लिखा था, बताया था। गुजरात के माननीय कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो जानते हैं कि वहां एक्सपेरिमेंट वो बहुत करते थे। एक एक्सपेरिमेंट क्या था, जो गुजरात के आईएएस हैं, आईपीएस हैं, वाइस चांसलर्स हैं और जो प्रतिष्ठित लोग हैं, उनको एक जिम्मेदारी दी जाती थी कि हर साल आप एक दिन गुजरात के किसी स्कूल में जाओ। मैं 3-4 साल गया जी, बिल्कुल ही वनवासी एरिया, सघन जंगल, उसमें एक छोटा सा स्कूल सरकार का। मेरा काम क्या था, सुबह से शाम तक वहां रहना था और उन बच्चों के साथ खाना खाना था और उनके साथ बातचीत करनी थी। ऐसा मैंने 3-4 साल अलग अलग स्कूलों में किया। मेरे को अंदाजा भी नहीं था कि सरकार की ये जो स्कीम है, ये कितनी भावनात्मक स्कीम है। वो छोटे छोटे वनवासी बच्चे, दूसरी के, पहली के, चौथी के, 5वीं के, उनके साथ जब मैं पूरे दिन रहा, और आपको हैरानी होगी कि जो खाना बनता है, जो लंच सर्व होता है, वहां पर एक परंपरा थी कि उन स्कूल के बच्चों की जो माँ है, बच्चे जिनके पढ़ते हैं, वो माएं ही आकर खाना बनाती थी। उन माओं ने खाना बनाया तो मैंने उनको पूछा कि सरकार कितना पैसा देती है खाना। कहते बात पैसे की नहीं है, पैसा तो सरकार देती ही है बनाने का, सामान भी देती है, पैसा भी देती है। बात यह है कि हमको लगता है कि हम अपने सारे बच्चों के लिए खाना बना रहे हैं, इनके स्वास्थ्य का ख्याल रख रहे हैं। तो वो जो प्यार से बनाया मां के हाथ का खाना, सरकार ने अपनी नीति से इसको इंप्लीमेंट कर दिया। कितनी बड़ी बात है। इसके लिए किसी को एम्प्लॉय नहीं किया गया, सिर्फ जिनके बच्चे पढ़ते थे वो माएं उन वनवासी एरिया में खाना खिलाती थी। ऐसा मुझे 3-4 बार का अनुभव है। और यदि मैं अच्छा इंसान थोड़ा भी बन पाया हूं, उन बच्चों से बातें करने का, उनके जीवन के संघर्ष को देखने का मेरे व्यक्तित्व पे बहुत प्रभाव पड़ा। मैं गुजरात सरकार का बहुत आभार व्यक्त करूंगा इसके लिए कि यानी ऐसी अनेक घटनाएं हैं। और जब मैं किताब पढ़ रहा था तो मैं पढ़ता चला गया और सोचता चला गया। एक बार फिर से मैं भी गुजरात में पहुंच गया। गुजरात ऐसे ही गुजरात नहीं है, हमको सच में बहुत कुछ सीखना चाहिए और हम सीख भी रहे हैं। इसी कारण से ये किताब जो है आपको अगर पढ़ेंगे पूरा तो आपको बहुत अच्छा इंसान बनाने में थोड़ी मदद जरूर करेगी। आपके लिए ये किताब शुभ हो, आप इस किताब को पढ़ेंगे, आपको अच्छा लगेगा, इसकी गारंटी मैं लेते हुए अपनी बात को खत्म करता हूं। आपका बहुत बहुत आभार।
Thank you very much, sir, for your words of inspiration. And I would like to inform the audience that the book is available to purchase just outside the hall. There's a stall. The book is otherwise for rupees 300, but today for the students and for the faculty, it is available for rupees 200. We also have in our midst Surjit Kumar ji, Rashtriya Adhyaksh, Shri Guru Ravidas Vishwa Mahapeeth, and Manoj Kumar Azad ji, Pradesh Adhyaksh, Delhi. आपका स्वागत। वह समूह संपादक हैं। वे डिजिटल न्यूज़ चैनल एक्सपोज इंडिया भी संचालित करते हैं। एयर इंडिया विमान अपहरण कांड के अपहरणकर्ताओं के नेपाली सीमा में रहने वाले हरकुत उल मुजाहिदीन, लश्कर तौयबा और ISI के संयुक्त एजेंट सरगना अब्दुल्ला मदनी को सीधा नाम के साथ बेहिचक प्रकाशित करने के परिणाम स्वरूप विदेशी इस्लामिक आतंकियों की धमकियों, हमलों व मुकदमों को झेल चुके हैं। अपनी जड़ों से विशेष लगाव के अधीन ग्रामीण अंचल में लोगों के जीवन स्तर को सभी प्रकार से सुधारने हेतु पर्याप्त समय गांव में भी गुजारते हैं। निकट भविष्य में वहां गुरुकुल, आयुर्वेदिक एवं प्राकृतिक चिकित्सालय, गौशाले आदि के निर्माण की भी तैयारी कर रहे हैं। I request Shailendra Kumar Jain ji to kindly share his thought with us. मंचासीन प्रोफेसर योगेश सिंह जी, श्री राम कृपाल यादव जी, श्री आत्माराम भाई जी, श्री गिरीश शर्मा जी, प्रोफेसर बलराम पानी जी, प्रोफेसर श्री प्रकाश जी, प्रोफेसर मनोज सिन्हा जी एवं श्री प्रकाश बरोड जी, साथ ही इस सभागार में उपस्थित सभी विभूतियों गणमान्यों को मेरा विनयपूर्ण वंदन एवं हार्दिक अभिनंदन। अत्यंत गौरवपूर्ण विषय है कि आज आश्विन शुक्ला पंचमी और ये संभवतः अमृत काल चल रहा है और देश में भी अमृत काल महोत्सव चल रहा है। पंचमी के अमृत काल में दिल्ली विश्वविद्यालय स्थित सुप्रसिद्ध व प्रतिष्ठित सभागार में, जो प्रोफेसर साहब ने अभी हमें आते ही बताया था, बड़ी ऐतिहासिक जगह है। हम सभी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के मित्र बाल सखा श्री गिरीश शर्मा जी द्वारा लिखित मोदी जी के अविस्मरणीय संस्मरणों के अद्वितीय संकलन स्वर्ण दिन के विमोचन एवं उसके साक्षी बनने हेतु दूर दूर से उपस्थित हुए हैं। मैं स्वर्ण दिन के लेखक श्री गिरीश शर्मा जी को हार्दिक बधाई एवं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझ जैसे एक सामान्य व लगभग सभी के लिए अपरिचित व्यक्ति को इस सदी के श्रेष्ठतम एवं विश्वप्रिय राजनीतिक व्यक्तित्व की प्रारंभिक संघर्ष यात्रा के वृत्तांत महोत्सव में आमंत्रित किया है और आपके समक्ष बोलने का अवसर प्रदान किया है। यह अवसर न केवल लेखक के लिए बल्कि हम सभी के लिए विशेष है, क्योंकि एक पुस्तक का जन्म उसमें पिरोए गए शब्दों, विचारों, अध्यायों आदि के दीर्घकालीन संरक्षण, उपयोग व प्रेरणा लेने हेतु होता है। यह अवसर साहित्य और ज्ञान के प्रति हमारी निष्ठा और प्रेम को भी अभिव्यक्त करता है। यद्यपि मैं मंचीय वक्ता नहीं हूँ, फिर भी प्रयास करूँगा कि अपने विचारों को आप तक पहुँचाऊँ। श्री गिरीश शर्मा जी ने जिस शीर्ष राजनीतिक व्यक्तित्व के विभिन्न प्रारंभिक स्वरूपों अर्थात एक सामान्य कार्यकर्ता के संघर्षों, विचारों, लक्ष्यों, अनुभवों, भावनाओं को एक पुस्तक स्वर्ण दिन का आकार देकर प्रशंसनीय पुरुषार्थ किया है, उसके वृत्तांतों को पढ़ने व उनसे प्रेरणा लेने की जिज्ञासा आज सभी के मन में निश्चित रूप से होगी और ये जिज्ञासा आने वाली पीढ़ियों में भी बनी रहेगी। अच्छी पुस्तकें एक जीवन शिक्षक की तरह होती हैं।
स्वर्ण दिन को अपनी लेखनी से सजाने वाले लेखक श्री गिरीश शर्मा जी के विशेष योगदान की सराहना करता हूं। मैं समझता हूं इस कृति की निर्माण यात्रा एक साधारण प्रक्रिया तो नहीं रही होगी, क्योंकि घटनाओं, अनुभवों और जानकारियों को इस पुस्तक में पिरोने के लिए उन्होंने न जाने कितनी रातों को जाग कर अपने विचारों को आकार दिया होगा। उनके अनुभव, विचार, घटनाएं और भावनाएं इस पुस्तक में इतनी स्वाभाविकता से प्रकट होती हैं कि पाठक जब इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो मानस में एक सकारात्मक ऊर्जा का सृजन महसूस होगा। आज के डिजिटल युग में इस पुस्तक के विमोचन के साथ हम सभी एक ऐसे ज्ञान का स्वागत कर रहे हैं जो देश के कर्णधारों को भी एक दिशा दे सकेगा। यह पुस्तक न केवल साहित्य प्रेमियों के लिए उपयोगी होगी, बल्कि उन सभी के लिए भी महत्वपूर्ण साबित होगी जो स्वर्ण दिन के सभी पहलुओं को समझने की इच्छा रखते हैं। व्यक्तिगत रूप से मैं स्वयं भी पिछले माननीय मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से पहले तक जो देश में माहौल था, तो कुछ करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। लेकिन जब 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने, तो उनकी कार्यशैली को देखकर मन में कुछ अपने गांव के लिए करने की इच्छा हुई। इससे पहले जब मैं गांव में जाता था तो 7 बजे भी मेरे बड़े भाई एडवोकेट है, वो कहते थे कि भैया यूपी में रात में मत आया करो। और उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद मैं रात को 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे पहुंच जाता हूं। जो पहले का गांव मैंने जिया है और जो अब गांव की व्यवस्थाएं बन गई हैं, जो मानव जीवन जितना सरल और सुलभ हो गया है, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। और जब हम किसी काम को करने निकलते हैं, अभी बीच में विकास भाई ने मुझे संदेश दिया कि आदरणीय गिरीश जी ने कहा है कि एक कार्यक्रम में है, वहाँ पे आना है। तो मैंने कहा भाई मैं तो गांव का आदमी हूँ, बहुत ज़्यादा इन दस्तूरों में पहुँच नहीं पाता, थोड़ी झिझक होती है। तो फिर भी इन्होंने मेरे से नाम ले लिया और जब मेरे को कार्ड भेजा तो उन्होंने मुझे कार्यक्रम अध्यक्ष के पद पे बिठा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद गिरीश जी। तो जब मैं काम करने के लिए गांव में गया, ऊर्जा कहाँ से मिली? मेरा ऐसा मानना है कि बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ने से अच्छा है कि उन किताबों को अपने अंदर आत्मसात कर लिया जाए। और गांव से शहर में आके मैं सन 1992 में दिल्ली आया था और कई कारोबार करने के बाद जब मैं पत्रकारिता और प्रकाशन व्यवसाय में गया, दुर्भाग्य से या सौभाग्य से मेरा जन्मांक मूलांक सद्दाम हुसैन और हिटलर से मिलता है। और सोशल मीडिया पे एकमात्र मैं शैलेंद्र जैन अप्रिय के नाम से मिलता हूं। शैलेंद्र जैन अप्रिय जी, वो इसलिए कि जब मैं सच बोलता हूं तो बात किसी को प्रिय नहीं लगती। तो जब मैंने वो पत्रकारिता में आया तो लोग अक्सर होता क्या है, जब सच खबर छपती है तो पहले फोन करते हैं, धमकाते हैं। अब वो दुर्भाग्य से मैं, मेरा जो मूलांक और जन्मांक है, तो मैं डरता नहीं किसी से, तो वो चलता गया। कोई मेरा बैकग्राउंड नहीं था पत्रकारिता का, एक्सीडेंटली मैं आ गया इसमें। तो उस समय पे वो विमान अपहरण कांड हुआ, खबर छपी, खबर छपने के बाद बड़ा बवाल हुआ। मेरा ऑफिस न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में था, तो मैंने कैमरे लगा रखे थे। पता चला कि वहां पे हमला हो गया और मैं ऑफिस में मौजूद था। जब हमला हो गया तो 15 मिनट में वो अपना कार्यक्रम करके चले गए, पुलिस आ गई। उसके बाद मेरे नंबर पे फोन आया, बोले ये तो ट्रेलर था, आगे। तो मैंने कहा ट्रेलर तो अब हम दिखाएंगे, हमारा भी ये ट्रेलर था, अब आगे हम दिखाते हैं आपको। उसके बाद विश्व का कोई देश नहीं है और कैसी भाषा नहीं है जहां से मेरे पास मेरे फोन पे धमकियां नहीं आती थी। दिल्ली पुलिस ने कहा कि हम आपको सुरक्षा नहीं दे पाएंगे, आप यहाँ से आए तो INS जाइए या फिर प्रेस एरिया ITO पे जाइए। तो 20 साल से मेरा ऑफिस प्रताप भवन में है। तो सारे काम करने के बाद उस व्यक्ति ने, जिसका नाम अब्दुल्ला मदनी है, और वो पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो नेपालवर्ती जिले हैं, उनके कार्यक्रमों में यहाँ हिंदुस्तान के लोग उसे मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाते थे। और मेरे पत्रकारों ने वहाँ पे सारी वीडियो रिकॉर्डिंग करा के वो सारी स्टोरी तैयार की थी और लास्ट में उसके नाम से छाप दिया था। और मेरे पास उस समय प्रेस नहीं थी, अब तो प्रभु कृपा से 2 प्रेस हैं।
तो मेरा अखबार अमर उजाला में छपता था। अतुल माहेश्वरी जी का फ़ोन आया कि जैन साहब ये क्या कर दिया। तो मैंने कहा अपना फैक्स नंबर दीजिए, तो फैक्स चलता था, तो मैं स्टाम्प पेपर अपने पास रखता था। मैंने उनको इंडेमनीफाई कर दिया उसी वक्त कि सारी जिम्मेदारी मेरी है, आपने तो सिर्फ छापा है। जब उसका कहीं कोई व्यवस्था नहीं बनी तो लास्टली उसने दिल्ली हाई कोर्ट में 11 करोड़ का मुकदमा मेरे ऊपर दागा सन 2004 में, और 2006 में मैंने वो मुकदमा खारिज करा दिया, क्योंकि मुकदमे होते रहते हैं। वकील को समझाना पड़ता है कि अगर सामने वाले की हैसियत 10 करोड़ की है और वो ITR भर देता है तो कल चेक ले जाए, मानहानि तो उसी से होगी ना। तो बहरहाल वो मैं मुकदमा जीत गया। और बोलूँगा तो बहुत समय लग जाएगा। गांव में भी जब मैंने ये सोचा कि जब देश को इतना बड़ा हीरा मिला है, कोहिनूर मिला है, तो मैं बातें न करके मैं कुछ काम करता हूँ। तो मैं अपने गांव पहुँचा, और गांव के लोगों के साथ दिक्कत क्या है कि वहाँ पे हर तरह के लोग होते हैं। और मैंने ये देखा है, हालांकि हम में से बहुतों की पृष्ठभूमि गाँव से होगी, कि शहर में आने के बाद गाँव भूल जाते हैं। और जब गाँव का आदमी हमारे पास आता है ना, तो उसे सम्मान नहीं दे पाते। तो मैंने वहाँ जा के रात के 2-2 बजे तक उनके बीच बैठना शुरू किया, और लोग जाते नहीं थे। और जब मैं दिल्ली के लिए निकलता था तो लोग रोने लगते थे, क्योंकि उनके साथ तब तक बैठना जब तक उनका मन न भर जाए, वैसी ही बात करना जो उन्हें अच्छी लगती है, उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस देना। तो उस कॉन्फिडेंस से आज मेरे गांव में 70 बीघा जमीन आक्रांताओं से मुक्त करा ली गई है। मेरे गांव में HD कैमरे लगे हुए हैं। कोई भी घटना करने से पहले व्यक्ति सोचता है, और मेरे पास हर पार्टी से संदेश आते हैं कि साहब आपका इरादा क्या है, आप चाहते क्या हो। तो मैं उनसे यही कहता हूं कि सफाई चल रही है देश में, तो सफाई ही चाहता हूं। इसके अलावा इस क्षेत्र में जाने का अभी कोई प्रोग्राम नहीं है, लेकिन अगर प्रभु ने चाहा तो देखा जाएगा। तो व्यक्तिगत रूप से मैं खुद भी पिछले 8 सालों से निर्बलों और असहायों की सेवा सहायता करने में अनेकों अत्यंत विषमतम राजनीतिक परिस्थितियों से लड़खड़ाता, गिरता और उठता रहा हूं। कई एक्ट और कई मुकदमे लग गए। मतलब एक व्यक्ति ने तो 100 रुपये महीने की रंगदारी का मामला दर्ज करा दिया कोर्ट के थ्रू। वो भी किस लिए कि एक मंदिर मेरी व्यवस्था में, वहाँ पे हिंदू मंदिर है, और उसमें अयोध्या की तरह लाल पत्थर लगा के मैं उसका निर्माण अपने व्यक्तिगत खर्चे पे करवा रहा हूँ। और वो बहुत सुंदर 60-70 बीघा जमीन में है, बड़े बड़े सरोवर हैं, और 600-600 वर्ष पुराने कदम्ब के वृक्ष हैं उसमें। तो इतनी समस्याएं आती हैं, तो जिसके लिए मुझे एक ऐसी संघर्ष यात्रा पढ़ने और समझने की महती आवश्यकता थी, जिसे अपने जीवन में आत्मसात कर उपद्रवियों और नकारात्मक तत्वों हेतु शांतिपूर्वक लंबी लकीर खींच सकूं। और मैं सोच ही रहा था तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन लागू हो गया, गिरीश शर्मा जी का मेरे पास संदेश आ गया, और ये किताब जो आज इसका विमोचन और जन्म हुआ है, ये मुझे मेरी भाषा में, मातृभाषा में आज उपलब्ध हो जाएगी। ये सब गिरीश शर्मा जी की अनुकंपा से हो सका है। और आगे इच्छा ये है, भावना ये है कि श्री गिरीश शर्मा जी स्वस्थ रहते हुए आगे भी हमें अपनी लेखनी और साहित्यिक साधनाओं से अभिसिंचित करते रहें। इनके सखा और हम सबके प्रिय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों और देश को प्रगति पथ पर अग्रसर रखें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। भारत माता की जय। Thank you very much, sir. You have certainly proved that sometimes the pen is mightier than the sword. I now request Professor Manoj Sinha, Principal, Aryabhat College, University of Delhi, to kindly propose the vote of thanks. Thank you, मितुला जी। आदरणीय मंच, मेरे सामने बैठे मान्यवर, गुजरात से आए हमारे सभी मेहमान, इस विश्वविद्यालय के डीन्स, प्रोफेसर्स, प्रिंसिपल्स, टीचर्स और प्रिय छात्रों,
इस कार्यक्रम में थोड़ा नर्वस, 2 ही मिनट लगाऊंगा, आप ज़्यादा चिंता ना करें, चाय भी आपको पीनी है। नर्वस इसीलिए हुआ कि आज का ये कार्यक्रम, इसकी जानकारी एक ऐसे कर्मयोगी को है जिसकी प्रेरणा से शायद हम सब एडमिनिस्ट्रेटर्स इस देश में अब काम कर रहे हैं। लेड बाय द ऑनरेबल वाइस चांसलर, देयर आर सेवरल हियर, मेरे सामने बैठे हुए लोग जो इस प्रेरणा से काम करते हैं और यही क्वालिटी अपने अंदर लाना चाहते हैं। हमारे स्रोत वही हैं। और इस कर्मयोगी के कार्यों के बारे में जो जानकारी हमें गिरीश शर्मा जी ने अपने पुस्तक, जो उन्होंने ओरिजिनली गुजराती में लिखी थी और उसका बाद में हिंदी संस्करण कुसुम शर्मा जी के करने से आया, और अब अंग्रेजी का जो संस्करण है वो संजय गुप्ता जी के सहयोग से आया है। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज वी विल ऑल बी एबल टू रीड द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ अ मैन हु वी एडमायर इन मेनी वेज, बट मेरे परिवार के मुखिया की आज्ञा हुई है कि अपनी नेगेटिविटी आज छोड़ दो यहाँ पर, बट मेरे मन में 2 नेगेटिविटी आ रहे थे, मैंने सोचा यही मन से यहाँ छोड़कर और चला जाऊं। एक पहला कि आई एम सॉरी साहब, आप सब मेहमान हैं, लेकिन गुजरात के लोगों को डिसअपॉइंट कर दूं एक, कि आप ये भूल जाइए कि अब हमारे माननीय प्रधानमंत्री कभी वापस गुजरात जाएंगे। जो गमला तोड़ने की बात हो रही है वो दिल्ली वाले ही उनको रख लें तो बहुत बड़ी बात होगी। कहां तो यूक्रेन में युद्ध चल रहा है रशिया और यूक्रेन के बीच, कहां मिडिल ईस्ट में इजराइल और ईरान भिड़ रहे हैं और हिजबुल्ला। खोज किसकी हो रही है? नरेंद्र दामोदर भाई मोदी की। यूएन में यूएस जैसे लीडिंग कंट्रीज, नाउ दे आर लुकिंग फॉर दिस लीडर। तो अब वापस गुजरात जाना तो बड़ा मुश्किल लग रहा है। हम दिल्ली वाले कितने दिन यहां पर अपने पास रख पाएंगे, यही पहला ये डिसअपॉइंटिंग पार्ट था उनके लिए। दूसरा एक शिकायत है राम कृपाल जी आपसे, आपको मालूम नहीं है लेकिन मैं आपका कंस्टिट्यूएंसी का एक रहने वाला व्यक्ति हूं। जब इस यूनिवर्सिटी में छात्र था 1980s में, तो एक उदाहरण सुना कि भारत सरकार में हमारे प्रधानमंत्री रुपए का 16वां पैसा भेजने के लिए परेशान थे। गांव में, जिलों में, राज्यों में 15 पैसे चले जाते थे, ऐसा सुना मैंने, 16वां नहीं जा पाता था। उसके आगे की तो बात कर नहीं रहा। एक उदाहरण आपको बता रहा हूं क्योंकि आपने उसको मेंशन किया और मैं आपका कंस्टिट्यूएंसी का रहने वाला व्यक्ति हूं। सड़क कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिजली कोई प्रॉब्लम नहीं है, पानी की सप्लाई अब सब जगह हर घर में आती है हमारे यहाँ, वो ठीक है अपने जगह। लेकिन एक दिन मैंने डिसाइड किया कि मेरे बच्चे जो है वो बाथरूम अच्छा नहीं था मेरे घर में, तो गांव जाना नहीं चाहते थे, तो बाथरूम बनवा दिया वहां पर। बाथरूम बनवा दिया और घर की ड्योढ़ी में, आप तो समझते हैं क्या बात कह रहा हूँ, ड्योढ़ी में एक लाइब्रेरी खुलवा दी है ताकि गांव के लोग कुछ पढ़ें वहां पर। वहां पर जो चौकीदार होते हैं हमारे, वो घूमते हुए आए और किसी ने मेरा बाथरूम उनको यूज करने दिया वहां पर। वो लौट करके उन्होंने अपना रजिस्टर खोला और कहीं पर एक टिक लगा दिया। उस टिक की वजह से आज हम डिजिटली चूंकि हर जगह जुड़े हुए हैं, एवरीथिंग इज नाउ लिंक्ड, हमारा आधार, हमारा सब कुछ। उसकी वजह से मुझे बाथरूम बनाने के 12,000 रुपये मेरे अकाउंट में बिना मेरे पूछे हुए आ गए। वहां मैं दर्जनों बार पूछ चुका हूं कि भाई मैं एक अर्निंग प्रोफेसर हूं, मुझे उस 12,000 की जरूरत नहीं है और मैं किसी को लौटा नहीं पा रहा हूं। किसी ने एडवाइस किया कि दान दे दो, दान तो व्यक्तिगत चीज होती है, वैसे भी हम लोग जब चाहते हैं दे देते हैं। वो 12,000 रुपये आप बता देंगे नरेंद्र भाई मोदी को कि कुछ लोग लौटाना चाहते हैं, वो लौटा नहीं पा रहे हैं सरकार। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, this is the man today that has been discussed, and thank you for being a part of it. All of you have spent an hour listening to us, telling you about a gentleman who is the Prerna Shrot for all of us.
मान्यवरों और उपस्थित गणमान्य अतिथियों, आज के इस विशेष अवसर पर मुझे ये सम्मान प्राप्त हुआ है कि मैं इस महत्वपूर्ण पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में आप सबका धन्यवाद करूं। सबसे पहले मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं श्री गिरीश शर्मा जी का, जो लेखक हैं गांधीनगर गुजरात से, जिन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से इस पुस्तक को प्रस्तुत किया है। आपकी रचनात्मकता और गहन विचारों ने हमें एक मूल्यवान धरोहर दी है। आपकी इस पुस्तक ने राजनीतिक विमर्श में एक नए दृष्टिकोण को उजागर किया है और हमें सोचने पर मजबूर किया है। मैं धन्यवाद करता हूं श्री रामकृपाल यादव जी का, पूर्व केंद्रीय मंत्री भारत सरकार, जिनकी उस उपस्थिति ने इस आयोजन की गरिमा को बढ़ाया है, और श्री आत्माराम भाई परमार, पूर्व कैबिनेट मंत्री गुजरात सरकार का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आपके आशीर्वाद और समर्थन ने इस आयोजन को और अधिक गौरवान्वित किया है। आप दोनों का मार्गदर्शन हमें सदैव प्रेरित करता रहेगा। इसके साथ ही श्री शैलेंद्र कुमार जैन जी, संस्थापक एवं समूह संपादक अमर भारती, तथा श्री प्रकाश बारोट, पत्रकार एवं महाप्रबंधक गिरिराज कॉरपोरेशन, आपकी अपनी उपस्थिति से के लिए आपका विशेष धन्यवाद करना चाहूँगा। और फिर हमारी अपनी टीम के लीडर प्रोफेसर योगेश सिंह जी, कुलपति दिल्ली विश्वविद्यालय, आपके प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने हमें इस महत्वपूर्ण अवसर पर अपने विचारों से लाभान्वित किया। इस महत्वपूर्ण किताब के विमोचन के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय में ऐसे भव्य आयोजन को संभव भी किया। आपका मार्गदर्शन शिक्षाविदों के लिए प्रेरणा स्रोत है। प्रोफेसर बलराम पानी, डीन ऑफ कॉलेजेस दिल्ली विश्वविद्यालय, और प्रोफेसर श्री प्रकाश सिंह, निदेशक साउथ कैंपस दिल्ली विश्वविद्यालय का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। आपकी उपस्थिति ने इस अवसर को विशेष बना दिया है और आप सभी का मार्गदर्शन हमें सदैव प्रेरित करता रहेगा। अंत में मैं इस आयोजन में उपस्थित सभी सम्माननीय अतिथियों, दर्शकों और आयोजन की टीम को भी धन्यवाद देता हूं। आप सभी के सहयोग के बिना यह कार्यक्रम संभव नहीं हो पाता। बहुत बहुत धन्यवाद और भारत माता की जय। Thank you, sir. I now request everyone to kindly rise for the national anthem. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। Ladies and gentlemen, I request everyone to kindly join us for high tea. It is being served at the back of the hall, and keeping in mind the festival of Navratras, the food has been prepared without onion and garlic, and there is special arrangement for those who are keeping fast today. Thank you very much. Yes, all